Dear students, today we are here with a summary of lesson 5, Should Wizard Hit Mummy? In this lesson, the writer wants to tell us about the complexities of adulthood and at the same time the curiosity of childhood. In this lesson, you will find two characters, Jack and Joe. Jack is father, Joe is a daughter. Joe is now 4 years old. And Jack used to tell story to Joe before sleeping and on Saturday. And it is now a tradition of 2 years to tell the story. Joe is habitual. Jack tells story only out of his mind. Now sometime he feels his head empty because he is telling the story for 2 years. And theme of the story is almost same. In every story you will find a creature. Creature started with the name Roger. Like that, Roger cat, Roger fish, Roger squirrel, etc. And in every story, this creature has a problem. And this creature went to an owl send him to wizard, and wizard solve the problem. It is the basic or base of every story. Today, Jack is telling story with some special purpose. The purpose is not to make her sleep, but to realize her that mother is always right. Because now Joe is growing and there starts some clash between her mother and her. That is why Jack wants to tell her story that mothers are always right. In this story, there is a creature named Roger Skunk. Roger Skunk emits very bad smell, or you can say stinky smell. And because of this smell, no other creature wants to play with him. That is why he feels lonely. Joe now is hearing this story, and Joe is very serious today. Usually she used not to be so serious, but today she is very serious. She wants to know what will happen. Jack started his story and told that Roger Skunk was emitting very bad smell. At this, Roger Skunk went to the owl. Owl sent him to wizard, and wizard asked, "For what you want to change your smell?" At this, Roger Skunk said, "I want the smell of roses." Then wizard chanting a mantra, and after that there was good smell of roses from the body of Roger Skunk. Roger Skunk was very happy. He came back, and in between the way, all the other creatures which used not to play with him today, they played with him because there was a good smell of roses from his body. He went home, but his mother asked, "You are emitting bad smell." At this, Roger Skunk said, "No, mother, it is not a bad smell, it is a good smell of roses." But mother said, "No, it is not our traditional family smell. That is why I do not want to make such type of smell. I do not like it." And who made this change? At this, Roger Skunk told that wizard changed the smell. Mother went there with an umbrella, and she hit the umbrella over the head of wizard and asked to change the previous smell. Wizard once again changed the smell of roses to the traditional smell of Roger Skunk, stinky smell, and they came home.
This is the story. But Jack end the story in this way. Joe said, "No, father, it is not a proper end. Mother should be hit by the wizard because it is not any fault of wizard. Skunk himself demanded to change the smell. Moreover, it is a good smell. That is why mother is faulty here." Jack said, "No, mother is not faulty. Mother knew it very well what is right and what is wrong." But Joe said, "No, father, mother is not appropriate." And this is the class, same class as always between adult and children. बच्चों, ये कहानी का मेन मुख्य उद्देश्य ये है, कहानीकार ये बताना चाहता है कि हमेशा बच्चों और बड़ों के बीच में एक द्वंद्व रहता है। बच्चे मानते हैं वो ठीक है, बड़े मानते हैं वो ठीक है। इसी विषय को लेकर के वो इस कहानी को लेकर के आया है। इसमें आपको दो मुख्य पात्र जैक और जो मिलेंगे। जैक फादर है, जो उसकी 4 साल की बेटी है। जैक पिछले 2 सालों से जो को कहानी सुना रहा है उसको सोने से पहले। हर कहानी एक जैसी ही होती है। हर कहानी किसी रोजर नाम के जीव से शुरू होती है, जैसे रोजर कैट, रोजर स्क्विल एसेट्रा। हर कहानी में एक जीव होता है, उसको कुछ समस्या होती है, वो अपनी समस्या के साथ एक उल्लू के पास जाता है, वो उल्लू उसको जादूगर के पास भेजता है, जादूगर उसकी समस्या को सॉल्व कर देता है, समाधान कर देता है और बदले में कुछ पैसे मांगता है और इस तरीके से समस्या का समाधान हो जाता है और वो जीव खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। लेकिन आज जैक कहानी जो सुना रहा है एक विशेष उद्देश्य से सुना रहा है। आज जैक ये बताना चाहता है जो को इस कहानी के माध्यम से कि माँ जो होती है हमेशा ठीक होती है, क्योंकि आजकल जो जैसे जैसे बड़ी हो रही है ऐसे ऐसे अपनी माँ से जिराबाजी करने लग गई है। इस उद्देश्य के साथ जैक ने कहानी शुरू की और आज कहानी का मुख्य पात्र था रोजर स्कंक। वो कहता है एक रोजर स्कंक होता है जिसके शरीर से दुर्गंध आती होती है, जिसकी वजह से कोई दूसरा जीव उसके साथ खेलता नहीं है और वो बेचारा अकेला रह जाता है। इस तरीके की कहानी सुन करके जो आज बड़ी गंभीर हो गई, जो आमतौर पर वो नहीं होती थी, जो अब जानना चाहती थी कि इस जीव का क्या होगा। तो पिताजी ने जारी रखी अपनी कहानी। उसने कहा ये रोजर स्कंक फिर उल्लू के पास गया। उल्लू ने उसको जादूगर के पास भेजा। जादूगर ने उससे पूछा कि बताओ तुम्हें किस तरीके की सुगंध तुम्हारे शरीर से चाहिए। इस पर रोजर स्कंक ने कहा कि मेरे शरीर से गुलाब जैसी खुशबू आनी चाहिए। जादूगर ने जादू का मंत्र मारा और मंत्र लगते ही जैसे उसकी दुर्गंध सुगंध में बदल गई और उसके शरीर से गुलाब की खुशबू आने लगी। वो जीव बड़ा खुश हुआ। रास्ते में जब वो जा रहा था तो बाकी सारे दूसरे जीव उसके साथ खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आज उसके शरीर से दुर्गंध नहीं सुगंध आ रही थी। करते करते वो घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है। इस पर रोजर स्कंक ने कहा कि माँ ये बदबू नहीं, ये खुशबू है, सुगंध है और मेरे शरीर से आ रही है। इस पर माँ बहुत गुस्सा कर गई। माँ ने कहा यह किसने किया? तो रोजर स्कंक ने कहा कि एक जादूगर ने ये ऐसा किया है। माँ तुरंत एक छाता लेकर के, अम्ब्रेला लेकर के उस जादूगर के पास गई और जाते ही छाते से उस जादूगर के सिर पर प्रहार कर दिया और उस जादूगर से कहा कि मेरे बेटे के शरीर से वही गंध आनी चाहिए जो पहले थी, क्योंकि ये हमारी परिवार की गंध है। जादूगर ने माँ के कहने पर वैसा ही किया और एक बार फिर जो बदबू है, बुरी गंध है, उस रोजर स्कंक के शरीर से आ गई। लेकिन रोजर स्कंक कुछ बोला नहीं और माँ और बेटा दोनों घर आ गए। इस तरीके से कहानी का अंत, रोजर स्कंक की कहानी का अंत किया आज जैक ने।
बट जो है वो इस अंत से खुश नहीं है। जो ने अपने पिताजी से कहा कि नहीं पापा, ये रोजर स्कंक की माँ ने ठीक नहीं किया। रोजर स्कंक की माँ को भी सिर पर छाता मारना चाहिए था जादूगर के द्वारा, क्योंकि जादूगर का कोई भी कसूर नहीं था। जैक ने कहा कि नहीं बेटे, तुम नहीं समझते, माँ ने जो किया वो ठीक किया। लेकिन जो कह रहे नहीं पापा, माँ ने जो किया वो ठीक नहीं किया। जो उसको समझा पाने में सक्षम नहीं थी, लेकिन वो अपने पिताजी की बात मान भी नहीं रही थी। इसी जो द्वंद्व के साथ ये कहानी का अंत होता है। ना जैक माना ना जो मानी, और दोनों के बीच एक द्वंद्व रहा। ये कहानी हमें बताना चाहती है कि बड़े और बच्चों के बीच अक्सर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा द्वंद्व चलता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम ठीक है और बड़ों को लगता है कि हम ठीक है। और पता नहीं कौन ठीक है या कौन नहीं है, हम कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, क्योंकि बड़ों ने दुनिया देखी है, क्योंकि बड़ों के पास दुनिया का अनुभव है, उनको पता है ठीक क्या है गलत क्या है, उस आधार पर यह ही कहा जा सकता है कि बड़े ठीक होते हैं। धन्यवाद।